Okay, so after the inaugural session, we are now about to begin the first technical session of the day. And let me tell you, through this platform at ACAE, under the aegis of Tarun, Ayush, and the entire GST committee, a lot of effort has gone into preparing this conclave. When I was asking Tarun what was the need of getting all these great speakers from outside, he said there is only one vision that ACAE Study Circle has, and that is sharing of knowledge. With this motto, I would now like to invite our star speaker, CA Bimal Jain sir, to kindly come on the dais, and may I request all of you to join me in giving him the loudest round of applause, please. Louder. Ma'am. So it gives me an immense sense of privilege. I'm very proud to be doing this honor. I look up to many people in my life, but for sure, sir, in GST, not me, but there are so many chartered accountants who look up to you in ways more than one. And you remind me always of this one line, which a wise man once said, that when you walk alone, you walk fast. But when you walk with people, you walk far. And thank you so much for doing that with us, Sabka Vishwas, Sabka Saath, with that motto, with the numerous lectures that you keep putting up on YouTube. And it's a source not only of knowledge, but inspiration for a lot of young chartered accountants like me. Emphasis on the word young, sir. But I'll also take two lines and introduce our speaker to the house today. CA Bimal Jain is a distinguished expert in indirect taxation with over 2 decades of comprehensive experience in the field of indirect taxation. He serves as the chairman of the IDT committee of the PhD Chamber of Commerce and holds numerous other professional memberships. And let me also tell you, he has been nominated to be awarded under the facilitator category of TIOL, and I think that deserves a big round of applause once again. And for the first technical session, sir would be throwing some light on the first 2 A's of our session, assessment and audit. And much has happened on the GST front, and we are very honored to have you today, sir. With these very few words, may I now request our executive committee member, CA Rashmi Chaucharya, to please come forward and felicitate our speaker for today. So the house is set and the floor is all yours. At the outset, let me first thank ACAE for organizing this GST conclave, and of course inviting me for this part of ACAE GST conclave. I was introduced that I'm being watched on YouTube. Can I have attention from the back? And there's so many seats vacant just before you. If you can just come forward, I can see each one of you. Then we can enjoy today's session. पीछे जो बैठे हैं, request कर लूँ? Yeah, please come forward. Come forward. There's so many seats vacant. Come forward and let's enjoy. I'm not going to give any technical presentation, rest assured. I will make it lighter. You must enjoy. जो पीछे हैं थोड़ा आगे आ जाइए. I'm starting at 11:35. With the due permission, because I'm being told 1 hour, so at least I must get my 1 hour. Then only, of course, then only I can complete 2 A's out of 4 A's. See, 4 A's are there for covering 2 A's. 1 hour, that too starting at 11:35. तरुण भाई तो ठीक है ना, पक्का ना? Are you all ready? No. This voice is not of Calcutta.
कैलकाटा इतना, अरे ममता दीदी दिल्ली में गई, अब तो बोल सकते हो, आज वो नीति आयोग की मीटिंग में है. So Calcutta is not so dull. Whenever I come back to Calcutta, I start feeling like I have come to my hometown. Of course, it's my hometown. Here we are very aggressive. यहाँ चिल्लाया नहीं तो फिर क्या किया, काम नहीं करिए, लोटते हबे. वो केकेआर का स्लोगन में ना, कोरबोरे मोरबोरे. I need voice little up. चिंता मत करो, अगली बार मैं ही आने वाला हूं. कब तक डराओगे और कब तक रोकोगे? नितेश भाई को लगता है कि हम आएंगे नहीं, आएंगे, जरूर आएंगे. See, nevertheless, this was on a lighter note to take you all into theme of today's presentation. The topic given to me, assessment and audit, followed by adjudication and appeal. So I will not touch base adjudication and appeal, but definitely I'm going to touch base what is assessment we are referring to. And do we have a VAT kind of assessment in GST? And what is this audit we all are talking about? So आप enjoy कीजिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स करूंगा, चलेगा? चलेगा ना? देखिए, असेसमेंट के लिए देयर आर चैप्टर 12 स्टार्टिंग विद सेक्शन 59 to 64, read with rule 98 to rule 100. So there are assessment like self-assessment. This is the prime silver and theme of GST. GST is based on self-assessment. Being registered person, you should self-assess yourself. Declare your liability, claim your credit, and pay the taxes. And furnish the detail in your GSTR 3B under section 39. Self-assessment is the important one. Now, when I say it's self-assessment, let me start with one Supreme Court judgment right away. That judgment was in our favor and against both together. Can you think of एक judgment आए जो मेरे फेवर में भी हो और मेरे अगेंस्ट में भी हो? वो घर वाली होती है. हाँ, कब मेरा साथ देगी और कब मुझसे झगड़ा करेगी, लेकिन फिर भी उसी के साथ चलना पड़ेगा, जीएसटी के साथ. That judgment is Bharti Airtel. And why this judgment has gone up to Supreme Court and what Supreme Court decided, for the period July 17 to September 17, Bharti Airtel did not take any credit, which they were supposed to. Why they didn't take credit? Because that time GSTR 2A was not available. So they could not take the credit. Around 923 crore rupees. Not a small penny I'm referring to. And they paid whole liability through e-cash ledger. When 2A came sometime in October 2018, when 2A came sometime in October 2018, they found that in their 2A, they were having enough credit more than 923 crore rupees. They realized they have made the mistake. Why they paid the amount through e-cash ledger, which they could have paid through e-credit ledger. They filed a writ petition in Delhi High Court and pleaded, Lordship, kindly allow me to revise my GSTR 3B. I was having enough credit. I did not take credit for the reason they did not introduce GSTR 2A. सारा ब्लेम उन्होंने किया कि इनने 2A नहीं इंट्रोड्यूस किया था. लॉर्डशिप, मुझे मालूम होता तो मैं क्रेडिट ले लेता और क्रेडिट से पे करता. Am I right? Thereby, I should be allowed to revise my 3B. Whatever I pay through e-cash ledger, it should be paid through e-credit ledger, and cash should be refunded back.
When matter, Delhi High Court allowed in favor of Bharti Airtel, you are right, 2A नहीं आया था, तुझे नहीं मालूम पड़ा कि तेरी क्रेडिट कितनी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा तू ठीक बोलता है, तेरे को 3B रिवाइज करने का मौका देते हैं. Matter went up to the Supreme Court. Supreme Court decided, and as I said, this judgment is on self-assessment. And Honorable Supreme Court has said, Bharti Airtel, GST is a self-assessment tax. Who stopped you not to take credit? Was there any provision that you need to take credit looking at GSTR 2A? There is no provision. Then why didn't you take credit? It is self-assessment tax. You could have taken credit and utilized while discharging your output tax, which you did not do. Now it is not permissible, being self-assessment tax. And that judgment is in our favor to the context of what is the relevance of GSTR 2A until 1st January 2022. Lordship has said GSTR 2A is only facilitation. It's not legal ground to check whether credit is available or not available. You should satisfy the condition under section 16 subsection 2, but you should not look at 2A. Only from 1st January 2022 you must look at 2B. So this judgment is giving a flavor that GST is a self-assessment tax. अगर आपने properly outward supply नहीं दिखाया, classification proper नहीं किया, rate proper adopt नहीं किया, ITC proper नहीं लिया, बाद में रोना नहीं चलेगा. You should self-assess yourself, and you are having power to do that. None is stopping you. Self-assessment tax. That is the theme. This is the beginning of assessment provision, starting with section 59. Going further, section 60, which is provisional assessment. As the name suggests, provisional assessment. So assessment is provisionally being done on 2 counts. When any taxable person, here the reference given taxable person, here they are not giving reference of registered person. Why this difference? For simple reason, taxable person as defined under section 2 subsection 107 of CGST Act means a person who is registered or liable to be registered under section 22 threshold amount or 24 compulsory registration. So if any taxable person perceive कि उसे नहीं मालूम पड़ रहा कि क्या वैल्यू होनी चाहिए, because GST leviable on transaction value, पर उसे नहीं मालूम पड़ रहा कि किस वैल्यू पे मुझे GST देना है, या उसको रेट में डाउट है कि 5 लगेगा, 12 लगेगा, 18 लगेगा, 28 लगेगा, तो एक आपको मौका दिया कि यू कैन फाइल योर एप्लीकेशन टू द प्रॉपर ऑफिसर कि सर मेरी वैल्यू या रेट आप मुझे बता दीजिए और फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसा डिसाइड होगा मैं दूंगा आपको. फॉर द टाइमिंग मैं प्रोविजनली पे करूंगा. बट आई एम श्योर लॉट ऑफ, इसमें कोई बंदा जिसने प्रोविजनल असेसमेंट एप्लीकेशन फाइल की हो 7 years, किसी ने नहीं की है. फिर भी आप सुनना चाहते हैं. ये तो ब्यूटी है जीएसटी की. जिसको किसी ने आज तक नहीं किया वो बिमल से कहा गया तू सुना. कोई इशू नहीं, फिर भी सुन लीजिए आप. सो आपको 2 काउंट पे प्रोविजनल असेसमेंट मिलेगा, एक वैल्यू और एक रेट के ऊपर. एप्लीकेशन डालिए. ASMT 5 बॉन्ड है एक तरह का. ये बॉन्ड क्यों एग्जीक्यूट करना पड़ेगा? क्योंकि जिस टाइम पे आप जीएसटी पे देंगे उस टाइम पे वैल्यू और रेट फिक्स्ड विथ सियोरिटी 25% ऑफ बॉन्ड अमाउंट.
आपको वो प्रोविजनली असेसमेंट के लिए ऑर्डर पास करेगा विद इन 90 डेज, और उसके बाद आप उस वैल्यू के ऊपर जीएसटी पे कीजिए. एंड दैट प्रोविजनल असेसमेंट नीड टू बी फाइनलाइज इन 6 months, which can further be extended by JC or ADC by 6 months, and then further can be extended by commissioner 4 years. तो ये फाइनल आपका असेसमेंट करेगा कि बिमल तूने सही दिया, गलत दिया, सब कुछ. लेकिन इसमें जो डिस्पैरिटी है वो मैं आपसे शेयर कर लूं, जो जीएसटी लॉ कभी समझने की कोशिश नहीं करता. एंड ऑलवेज आई फाइंड दे हैव 2 yardstick. डिपार्टमेंट को देखने का तरीका अलग. डिपार्टमेंट के लोग हैं यहां पे? सॉरी अगर मैं कुछ नेगेटिव बोल जाऊं तो आप ये मानिएगा बिमल का दर्द बोल रहा है. हाँ, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं है. अगर आप न्यूट्रल हैं तो आप मेरा दर्द समझ पाएंगे. एक ही पैरामीटर के लिए आपके लिए दवा अलग और टैक्स पेयर के लिए दवा अलग. ऐसा क्यों? बताता हूं मैं आपको. प्रोविजनल असेसमेंट में मान लीजिए 100 रुपए पे आपको जीएसटी देने की प्रोविजनली असेसमेंट हुआ, और फाइनल असेसमेंट में यह तय हुआ बिमल तुमको तो 120 रुपए पे टैक्स देना था. तो वो आपसे 20 रुपए डिफरेंशियल अमाउंट पे इंटरेस्ट मांग लेगा फ्रॉम दैट ड्यू डेट जहां से लाइबल है. एम आई राइट? उसी को उल्टा कर लेते हैं. मैंने 120 पे टैक्स दे दिया प्रोविजनली असेस, पर फिक्स हुआ 100 रुपीज. अब मुझे रिफंड मिलेगा ना, तो मुझे रिफंड में इंटरेस्ट चाहिए. पहले तो इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं. इनका डिले हो गया तो 18%, समझ गए ना? और मेरा रिफंड 2 बातें सर, 2 बातें. ना उस दिन से नहीं मिलेगा जिस दिन से ड्यू डेट ऑफ पेमेंट की आप बात कर रहे हैं. जब फाइनल असेसमेंट होगा और आप रिफंड एप्लीकेशन 54 में डालेंगे, अगर वो 60 डेज में नहीं मिला तो 61st डे से आपको मिलेगा. और वो भी कितना रेट मिलेगा मालूम है? 6%. पहले प्रिंसिपल ही आ जाए. एम आई राइट? ये है प्रोविजनल असेसमेंट. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर. सेक्शन 61, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न. और ये सुनने में आपको जरूर मजा आएगा. सारी असेसमेंट में अगर कोई सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 61, रेड विथ रूल 99, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न. बीइंग ए रजिस्टर्ड पर्सन, वो हम क्या करते हैं? हम अपना 1 भरते हैं, 3B भरते हैं, और 3B के अंदर 2A और 2B से क्रेडिट लेने की बात है. Am I right? 9C भी भरते हैं. पहले CA में ऑडिट करते थे, अब सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जाता है हमारा, हम खुद ही करते हैं. जब डिस्क्रिपेंसी होती है तो वो ASMT 10 आपको देता है. कितने लोगों को ASMT 10 मिला? एक बार हाथ उठाइए. कोई बंदा जैसे नहीं मिला आज तक? हाँ, क्वेश्चन मुझे यह पूछना था, गलती हो गई. मतलब हर किसी को ASMT 10 तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप विद इन 30 डेज ASMT 11 में रिप्लाई कर दीजिए. आप भले मानस आप रिप्लाई भी करते हैं. फिर एक और प्रोविजन है ASMT 12, यानी डिपार्टमेंट या तो डिस्क्रिपेंसी आपको जब उसने ASMT 10 में दी, आप उसकी बात मान लीजिए और टैक्स जमा करा दीजिए अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो रिप्लाई आपको देना है, और रिप्लाई नहीं भी देंगे तो उसको पावर है, वो ASMT 12 आपको इश्यू करेगा. एंड देन ही विल स्टार्ट प्रोसीडिंग टुवर्ड्स, आपके अगेंस्ट में ऑडिट स्टार्ट करवा सकता है 65 में. मैम 66 में स्पेशल ऑडिट बाय नॉमिनेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट और CMA. 67 इंस्पेक्शन सर्च सीजर भी आपके यहां हो सकती है. 73 में सो कॉज नोटिस नॉन फ्रॉड केस, 74 में सो कॉज नोटिस फ्रॉड केस.
अब 73 74 की भी लाइफ खत्म होने वाली है, हो गई 23 24। अब तो इनने एक नया धमाका दिया है 74 कैपिटल ए। कहा बिमल कॉमन टाइमलाइन फाइनेंस बिल में है 24 में, कॉमन टाइमलाइन फॉर इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस एंड ऑर्डर irrespective of fact whether fraud case or non-fraud case within 42 months from the due date of furnishing annual return, and for erroneous refund it is 42 months from date of erroneous refund, and which department will pass the order within 12 months from the date of issuance of so called notice, which can further be extended by 6 months by commissioner or any proper officer not below the rank of joint commissioner. तो 42 12 6 60 months, am I right? 5 साल के अंदर all done. One way it is looking very nice कि 5 साल में तो कुछ ना कुछ, लेकिन फ्रॉड और नॉन फ्रॉड दोनों ही हिंदी चीनी भाई भाई, ये थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता। तो उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए पेनाल्टी के प्रोविजन अलग कर दिए हैं उसके अंदर। 73 में मैक्सिमम 10% पेनाल्टी होती थी, 74 में 100% होती थी, बट वो नियम था ना, बिफोर सो कॉज नोटिस 15%, विद इन 30 डेज ऑफ सो कॉज नोटिस 25, 30 को 60 डेज कर दिया उसने, 25%, ऑर्डर के 60 डेज में 50%, उसके बाद 100%। दैट इज व्हाट थोड़ा सा हम लोगों का ट्रीटमेंट अलग कर दिया उसने 74A के अंदर, एंड एप्लीकेबल फ्रॉम 24 25 ऑनवर्ड्स। तो उन्होंने सेक्शन 61 में 74A का रेफरेंस डाल दिया। अब थोड़ा हमको कई जजमेंट के ऊपर जाना है, समझना है, और ये ब्यूटिफिकेशन को समझना है कि हो क्या रहा है आज की डेट में। माय फर्स्ट क्वेश्चन, whether scrutiny is really necessary before issuance of so called notice under section 73 74 now 74A। देखिए पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं आपको, फ्रॉम द बैक सीट, मैडम मैसेज इज ओके टू यू लास्ट बेंचेस, यू स्पिक्स इज ओके, आई रियली वांट वन ओवर अटेंशन। कि क्या होता है, देखिए कई बार जब आप मुझे सुन रहे होते हैं और आपका ध्यान कहीं और है, तो मुझे लगता है नहीं यार ये रह गए, इनको मैं नहीं समझा पाया, तो मुझे इनको भी समझाना है, आपको भी समझाना है। लेकिन मजा तभी है जब आप बैठे हों और एक ही जगह मजा लें, एक टाइम पे 4 जगह मजा। सर 1 at a टाइम, बनाना ये खुश होगा, इसकी तो बात ही छोड़ दो, जो है ये भी हाँ ये देखो जो है वो भी चला जाएगा, जाने नहीं देंगे। चलिए ठीक, और लाइटर नोट मैम, पर्सनली नहीं लेने का, मैं तो आपको इसलिए इनके जरिए मैंने आपको इन्वॉल्व कर लिया। सो सी बिकम रॉक स्टार ऑफ टुडे। सी आई रियली नीड योर अटेंशन। माय क्वेश्चन बैक, before issuance of so called notice under section 73 74 74A, scrutiny is necessary or not? Tell me yes or no. Not necessary? Okay, anyone say necessary? It's better than 65 at least, sir. Okay, 65. Next, anyone? पीछे से कोई? स्क्रूटनी जरूरी है क्या? मैं सो कॉज नोटिस भी आपको दे सकता हूं, तो स्क्रूटनी करना पड़ेगा क्या मुझे? I'm giving you back to back 2 judgment. AP High Court judgment, Devi Traders, वहां पे कोर्ट ने ये रूल किया, बिमल जो ओरूप दादा ने बोला, scrutiny is not necessary, because when you look at the preamble of section 73 74 now 74A, it starts with where it appears to the proper officers. Tagline, where it appears to the, उसे तो कितना appear होता है मालूम है आपको, मालूम है ना?
और अभी डिपार्टमेंट के लोग भी बैठे हैं, कहीं बुरा मान जाएंगे तो मुझे भी दिक्कत है, तो मुझे बैलेंस करके बोलना है। तो उनने वाइट पावर दे दिया। एंड इन डेबी ट्रेडर्स इश्यू वाज द गाय हैज टेकन क्रेडिट विदाउट हैविंग सप्लाई ऑफ गुड्स। देयर वाज फ्रॉडुलेंट क्रेडिट and it was argued before the court. Lordship, even during scrutiny I cannot identify there was fraudulent. So it came later to my mind it was fraudulent credit. So scrutiny is not necessary. So I go with the Arup Das Gupta ji. Now question to Arup Das Gupta ji once again. In Guwahati High Court, PepsiCo Holdings, what they did, GSTR 9C में टेबल 14 होता है, याद आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है याद? पीछे से, यहां से सामने वाले तो सारे लर्नेड हैं। वो टेबल 14 ऑप्शनल होता है, एक्सपेंस वाइज आपको क्रेडिट डालना पड़ता है, राइट? डालना पड़ता है, शिवानी डालना पड़ता है, ऑप्शनल है। नहीं डाला इसने, बोला नहीं तेरी क्रेडिट मैच नहीं कर रही है। अरे ऑप्शनल है, क्रेडिट मैच नहीं कर रही है, सो कॉज नोटिस। And without doing scrutiny, it was argued before Lordship, section 61 is the discrepancy simpliciter. सिर्फ 1, 2A, 2B, 3B, 9, 9C, आपको सबको मिला के देखना पड़ेगा। अब AI से बोलिए सबको मिला के चेक कर, और जहां ऑप्शनल है उसको साइड। अगर ये चेक कर लिया गया होता तो सो कॉज नोटिस की जरूरत नहीं थी। That got stayed. So on same parameter, one favor, one against, divergent judgment as on date. So thumb rule would be, it depends on the fact of the case. But let me make it more interesting now. You know section 168 capital A? Yes. How many of you know section 168 capital A? ओके 4, 5, 6, 7, 8, ओके कोई दिक्कत नहीं। जिनको नहीं मालूम वो सुनिए, बड़ा मजा आएगा। मार्च 2020 में कोविड आया था, किसी को डाउट? मार्च 2020 में कोविड आया तो इनने जीएसटी काउंसिल में अपनी बात रखी। इनने मतलब डिपार्टमेंट के लोगों ने, और उनकी बात तो वो ज्यादा सुनते हैं, उन्हीं के भाई बंधु हैं। उन्होंने कहा सर हम स्क्रूटनी नहीं कर पाए, कोविड आ गया था, रिड्यूस स्टाफ पे हम काम करते थे, सारे ऑफिसर्स नहीं आते थे, स्टैगर टाइमिंग हुआ करती थी, और सम टाइम कई स्टाफ के लिए एग्जिम्पशन था कि उनको अटेंड नहीं करना। सर फॉर 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20 हमको स्क्रूटनी करनी थी, ऑडिट करना था, फिर सो कॉज नोटिस देना था, लेकिन हम तो सारा काम स्क्रूटनी वगैरह कर ही नहीं पाए। सर हमें वो सो कॉज नोटिस और ऑर्डर जो पास करने हैं ना 17, 18 के, 18, 19 के, 19, 20 के लिए हमारे लिए टाइम बढ़ा दीजिए। अगर नॉर्मली आप देखें ना 18, 19 का पीरियड ले लेते हैं, 18, 19 की ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न क्या थी? 31 दिसंबर 2020, एम आई राइट? 3 साल में ऑर्डर पास करना था, 31 दिसंबर 23, एम आई राइट? सो कॉज नोटिस देना था सितंबर, एम आई राइट? ऐसा ही था ना, ऐसा ही था ना? नहीं टाइम बढ़ा दीजिए। तो कई नोटिफिकेशन 13/2022, 9/2023, 56/2023, इनके लिए डेट बढ़ाई गई। नहीं तुम सो कॉज नोटिस ऑर्डर के लिए तुम्हारे लिए डेट बढ़ गई। 73 की बात कर रहा हूं मैं, 74 की बात नहीं कर रहा, नॉन फ्रॉड केस। और क्यों बढ़ा दी गई? मार्च 20 में कोविड आया था और मार्च 23 में कोविड का असर दिख रहा था उनको। हाँ सर, इट इज अंडर लिटिगेशन। सेक्शन 168 कैपिटल ए इज अंडर लिटिगेशन टुडे। मैं आपको अपना एक केस बताऊंगा, 2-3 केसेस हमने फाइल किए हुए हैं इसके ऊपर, बट माई ओनली सबमिशन इज, एंड 2 जजमेंट अभी तक आ गए हैं पब्लिक डोमेन पे। एक फेजल ट्रेडर्स केरला हाई कोर्ट सिंगल मेंबर बेंच,
एक गार्जियानो, डिवीजन बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट। दोनों जजमेंट अपने अपने टेरिटरी में है। फैजल बोलता है ये एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव मतलब डिपार्टमेंट का पावर है, डेट बढ़ा सकते हैं वो। ओह, गार्जियानो बोलता है नहीं नहीं, ये लेजिस्लेटिव पावर है, ओनली लेजिस्लेशन के जरिए ही डेट बढ़ सकती है। और ये मान लिया बिमल, जीएसटी काउंसिल ने सही रिकमेंडेशन दिया। मार्च 20 में कोविड आ गया था, ये बेचारे काम नहीं कर पा रहे थे, स्क्रूटनी नहीं कर पाए, असेसमेंट नहीं कर पाए, ऑडिट नहीं कर पाए। सो कॉज नोटिस तुझे कैसे देंगे? कल तू ही आके बोलेगा इतने स्क्रूटनी नहीं की। तो ये लोग भूल क्यों जाते हैं कि स्क्रूटनी इज द फर्स्ट स्टेप फॉर इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस, एंड दैट इज इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट। दैट जजमेंट इज रिलाइंग ऑन स्क्रूटनी। So why they can issue and why they are empowered to issue so-called notice without doing scrutiny? So Rubda, that's what Gagiano you must look at, and that was heavily relied upon. And they are justifying 168 capital A justified on this ground. काम नहीं कर पाए वो लोग। तो थोड़ा मैंने आपको बैकग्राउंड समझा दिया, थोड़ा ब्यूटीफुल और भी बना दो, इसको और इंटरेस्टिंग बना दो। मार्च 2020 में आपका 3B था ना? आप भी बेचारे टैक्स पेयर हैं, नहीं भर पाए। अब यहां डिपार्टमेंटल ऑफिसर है, वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर 1920, मार्च 20 का रिटर्न एक टैक्स पेयर बेचारा नहीं भर पाया बिकॉज ऑफ कोविड, सेम कोविड। उसकी लास्ट डेट थी 16 सबसेक्शन 4 में क्रेडिट लेने की, 20 अक्टूबर 2020। उस बेचारे ने भरा 27 नवंबर 2020 को, हार्डली 1 मंथ। डिपार्टमेंट डिनाइड द क्रेडिट, बोला नहीं नहीं तुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि तूने लेट भरा है। तो मैं बार बार इनसे कहता हूं, अच्छा मार्च 20 का कोविड, मार्च 23 में आपको दिखता है स्क्रूटनी नहीं कर पाया, असेसमेंट नहीं कर पाया, इसकी डेट बढ़ा दी 73 की सो कॉज नोटिस की। और मार्च 20 में ये 3B इसका जाना था, उस तुमको कभी दिखा नहीं। हमको सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करनी पड़ी थी इसके लिए। वी फाइल SLP इन सुप्रीम कोर्ट, बट फॉर्चुनेट पार्ट दिस टाइम दे हैव हर्ड आवर वॉइस। 53rd GST Council meeting, and they have amended and introduced new subsection 16 subsection 5. सुना है कितने लोगों ने? अच्छा, जिनने हाथ नहीं उठाया उन्हें नहीं सुना? नहीं, अगर नहीं, एक तो होता है कि हाँ, जिसने हाथ उठाया उसने सुना, और जिसने हाथ नहीं उठाया उसने। देखिए मैं बताऊं एक चीज, हम लोग इतना टेंशन में क्यों रहते हैं? हाथ बात उठाते रहा कीजिए। हाँ, पता नहीं मालूम, जो हाथ नहीं उठा रहे वही नीचे रह गया। सर बाबा रामदेव भी बोलते हैं एक्सरसाइज करते रहिए। सर हाथ उठाने के लिए बोलूं तो ये मत सोचिए कि क्या बिमल जी हाथ बात उठा रहे हैं, इनको बुलाया ये अपना बोले। सर नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। हाथ नहीं उठाया इसका मतलब इसको कान पकड़ के समझाना है। 16 subsection 5 start with a non-obstante clause. Whatever contained in section 16 subsection 4 override, and saying that for 4 initial financial year 17-18, 18-19, 19-20 and 20-21 you are allowed to avail credit. Only condition, you must have availed in 3B, and that too by a date 30th November 21. अगर आपने ले लिया है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगी, बल्ले बल्ले। लेकिन जिसने 3B में नहीं लिया छूट गया। 99C में ले लिया था मैंने, जिसने 99C में नहीं लिया बुक्स में ले लिया था मैंने। हाँ हाँ सही कह रहा हूं सर, दर्द समझो मेरा, मुझे नहीं मिलेगी। आई एम गिविंग यू फूड फॉर थॉट। कई लर्नेड बंदे बैठे हुए हैं मेरे सामने, वो सोचेंगे बिमल जी बोल के तो जाएं, इस पे होगा क्या। आई एम गिविंग यू स्टिल वन मोर लिटिगेशन ऑन।
you must be recalling Madras High Court judgment Kevin HP Gas. And you must be recalling judgment of Madras High Court Sanmuga Hardware Electricals. वो 3B में नहीं ले पाया था, एक 3B नील भर दिया. And what is being decided, you know? क्रेडिट लेने का डॉक्यूमेंट 3B है क्या? उन्होंने कहा लॉर्डशिप, prior to 1st October 2022, there was another credit document, GSTR 2, which was never implemented. So you can't say only 3B. Even 2 was the credit document which was never implemented, hence doctrine of impossibility. You can't bar my credit only on the basis of 3B. पर आपको हेल्प तो मिल गई है, पर मैंने आपको फूड फॉर थॉट दे दिया और 4 साल मैंने बताया. अब मैं इस पूरे ऑडियंस का टेस्ट लेना है मुझे. आर वी ऑल रेडी? फ्रॉम द बैक. पीछे वाले ऐसा लग रहा है ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो लोग सपा वाले हैं. हाँ, मतलब उनको मतलब नहीं, बोल 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 बोल. ये इनको क्या लग रहा है मालूम है, या तो जेडीयू बन जाए. सर वो आपका भी वोट चाहिए मुझे. इस बार तो पता नहीं गलती से बोल दिया 400 पार. नहीं 400 पार गलती से बोल दिया. आपका भी वोट चाहिए तो आपको भी कुछ बोलना है. आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको नहीं देख रहा, आपके भी वॉइस आनी चाहिए. तो मेरा पॉइंट जो आपको है कि 4 साल इसने बोले 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 क्यों नहीं बोला? एनीवन? Shall I tell you? This 30th November in section 16 subsection 4 effected from 1st October 2022 and it was made applicable for 21-22. Thereby this was not considered and they have taken initial 4 years. This was the reason. I hope now you are collecting. Urup Dada? Yes. ठीक अच्छे? I'm not saying that. I'm only saying that what could be the legal force only in considering initial 4 years. But still they have left something to argue with. Sir, please. Again? अच्छा আবার একবার বলবো, নিশ্চয়ই বলবো. হ্যাঁ ছাড়বো না. Initial 4 years 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21. 30th November 21. Am I right? And I said, why not 21, 22? Because for 21, 22, they have made 16 subsection 4 applicable 30th November 22. Thereby it was no need. That is the reason they considered only initial 4 years. Hope I am clear to all of you. Having said that, एक और झंझट चल रहा है 1 versus 3B का. स्कूटनी में आता है ना? आता है ना? अब स्कूटी में ये नाटक कहां से आ रहे हो ना? 2 इंस्ट्रक्शन है. एक इंस्ट्रक्शन नंबर 2 dated 22nd March 2022 and it was for 2 financial years 17-18 and 18-19. Then they have issued another instruction 2/23 26th May 23 1920 onwards. और सारा ड्रामा उसके अंदर डाल दिया है कि कब आप डिस्क्रिपेंसी नोटिस भेजेंगे. 1 वर्सेस 3B कितना नाटक है, 2A 2B वर्सेस 3B कितना नाटक है, 16 सबसेक्शन 4 कितना नाटक है. एक वो नाटक कैंसिल सप्लायर वाला है ना. सर आप इंस्ट्रक्शन खोल के पढ़ लेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा. और AI ने तो अभी क्या कर रखा है मालूम है, वहां पे 1 रुपए का भी डिफरेंस है नोटिस. हाँ. और ये लोग कहीं ध्यान देना नहीं चाहते, वो 1 रुपए के लिए नोटिस क्यों? AI का मतलब ये थोड़ी हम कि फिर तो हमको वहां उधर ही एक टेबल चेयर चाहिए. सर नहीं, AI मीन यू शुड फिगर आउट व्हाट इज द हाई एंड केसेस, मीडियम एंड केसेस, लो एंड केसेस यू नीड टू डन अवे विद. दैट शुड बी द थीम. अगर मैं आपसे यहां पे छोटी छोटी बातें करने लगूं तो आपको मजा ही नहीं आएगा टॉपिक में. अब वो 1 वर्सेस 3B का भी ड्रामा कर लूं मैं आपका. मान लीजिए आपने 1 भरा, आपकी लाइबिलिटी कितनी थी? मान लीजिए 10 लाख रुपए थी.
जब आप भर रहे थे तो 1 जीरो ज्यादा लग गया, और रिटर्न तो जाते ही रात को है, दिन में तो जाता ही नहीं ना। वो हो गया 1 करोड़ रुपया। अब 3 भी भरना है, 1 तो आप रिवाइज कर नहीं सकते। अब इन दादा लोगों ने एक 1A दे दिया है, 1A, राइट। 1A में कोई फायदा नहीं है सर। मैं आपको बताता हूं 1A में कोई फायदा नहीं है। आप ढोलक मत बजाइएगा। अभी बताता हूं, पहले ये वाला पार्ट समझ लीजिए, फिर वो वाला पार्ट समझाऊंगा। मुझे 1 घंटे का टाइम है, मुझे कई बार डर लगता है कहीं सर वो, पहले तो आप लोग को ग्रिप में लेने में ही आधी घंटा निकल जाता है। हाँ तरुण भाई सही कह रहा हूं, आधी घंटे में तो ये बेमल के साथ अलाइन हो पाते हैं। वो मैडम तो मोबाइल पे थे। हाँ हाँ, अब 1 करोड़ रुपए आप जमा करेंगे क्या? आप तो वो 10 लाख ही जमा करेंगे। 90 लाख रुपीज को इन्होंने कह दिया सेल्फ असेसमेंट टैक्स होगा ये, 75 सबसेक्शन 12, and it can be recovered even without issuance of so cause notice, 73, 74, और अब आगे क्या बोलेंगे? जोर से क्या बोलेंगे? हाँ, ये अमेंडमेंट भी आ गया है फाइनेंस बिल में। देखिए आपको कैसे कैसे बता रहा हूं फाइनेंस बिल में कैसे चेंज आया है। उन्होंने बोला हम सो कॉज नोटिस तुझे और तेरी रिकवरी करेंगे 90 लाख की। वो रूल 88C याद आ रहा है? पार्ट बी, पार्ट ए आएगा DRC 01B का, 7 दिन में रिप्लाई कर या पैसा दे, नहीं तो फिर रिकवरी। उफ, I've got 2-3 लीगल पॉइंट। GSTR 1 में मुझसे गलती हो गई, 37 giving me a power that I can rectify any omission or error till 30th November of succeeding financial year. How you can initiate recovery proceedings? Who is giving you the power? Are you not creating rule over and above the provision? ये नाटक है, all नाटक going on. But nevertheless 1A आ गया ना, सब खुश हो गए। तो 1A का क्या नाटक है मालूम है? मान लीजिए 1 भर दिया 1 करोड़ रुपया से गलती से, आपको रियलाइज हुआ। अगर 13 तारीख तक रियलाइज हुआ तो ठीक रियलाइज हुआ। हाँ, 13 तक अगर आपने उसको ठीक कर दिया तो ठीक है, क्योंकि फिर कई बार ऐसा भी होता है ना कि मान लीजिए अब एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर देते हैं। मान लीजिए आपकी 10 लाख की लाइबिलिटी थी, जिसमें 5 लाख रुपए आपने मुझे सप्लाई किया, गलती से आपने मेरा ही ट्रांजेक्शन नहीं डाला, या 10 लाख डाला लेकिन 10 नंबर किसी और का डाल दिया। 2 सिचुएशन, एक आपने मेरा इनवॉइस नहीं डाला, एक आपने डाला तो मेरा GST प्रॉपर नहीं डाला, 1 भर दिया आपने, तो दोनों केस में मेरे 2B में तो ऑटो पॉपुलेट होगा नहीं। तो उसने कहा कि 1A के जरिए ठीक करना है तो 13 तक कर ले। अगर आपने इसको 15 तारीख को ठीक किया ना, वो तो 20 से पहले बोलता ना, 3B से पहले, 3B से पहले है, लेकिन अगर 15 तारीख को किया ना तो फिर मुझे उस मंथ की क्रेडिट नहीं मिलेगी, फिर मुझे सक्सीडिंग मंथ में मिलेगी। यानी 1A का ड्रामा, मतलब ये सारी बातें कहां होती है मालूम है? वो पीछे जाके 4 पन्ने में होती हैं, छुप के होती है। जब मैडम आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तब नहीं बोलते, तब बोलते हम 1A लेके आ गए हैं। अरे तू आउटपुट टैक्स की सारी बात कर रहा है, इससे आउटपुट टैक्स प्रॉपर ले रहा है तो क्रेडिट भी तो दे दे। बट नेवरदलेस मैंने आपको ये वाला पार्ट भी समझा दिया कि दिस इज व्हाट द प्रोविजन। एक लास्ट पार्ट, फिर देन स्क्रूटनी खत्म करेंगे। एक आजकल नाटक चल रहा है कि आपके सप्लाई का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं, और वो भी रिट्रोस्पेक्टिव डेट के साथ, क्योंकि उनको तो सर मुझे ना बोलने का इतना मन है भीतर से, फिर तरुण भाई देखने लगेंगे कि टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो। अच्छा 15 मिनट बढ़ जाएगा, चलेगा? शिवानी है, शिवानी भी क्या नाटक कर रही है, एकदम GSTN की तरह, भर भर रिटर्न भरने नहीं दूंगी, भर भर रिटर्न भरने नहीं दूंगी। 15 मिनट ज्यादा चलेगा? अरे आप लोग हाँ बोलेंगे तो सुनेंगे। हाँ हाँ, अच्छा Q&A भी है, तो 15 मिनट पहले मुझे बोल लेने दो, हो सकता है उसमें बहुत से आंसर निकल जाएं। एक बंदे का क्या हुआ, रिट पिटीशन डाली थी, उसको
16 मई 2023 को अरूप दादा नोटिस आता है कि क्यों ना तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि तूने रजिस्ट्रेशन बाय मींस ऑफ फ्रॉड लिया है। 16 मई 2023 वो मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया, बोला जैन साहब नोटिस। ने क्या चाहते हो? बोले सर बताइए कैसे क्या करना है। मैंने तुझे लॉन्ग सर्विस लेनी है शॉर्ट सर्विस लेनी है? तो लॉन्ग शॉर्ट से वो समझ गया था, लॉन्ग का मतलब ज्यादा फीस, शॉर्ट का मतलब हाँ। तो मैंने बोला यहां तू ठीक समझा है, नहीं कम फीस। अरे शॉर्ट में थोड़ी नशा चढ़ता है यार, ये पिया ही नहीं है, लॉन्ग में चढ़ता है बड़का वाला। तो मैंने बोला कहां से आए हो? बोले कलकत्ता से आया हूं। मैं तो कलकत्ता से आया तो फ्री में मांगेगा अभी। तो मैंने बोला कि भैया लॉन्ग तुझको करवाना पड़ेगा। बोले नहीं जैन साहब वहां तो 5,000 में रिप्लाई कर देंगे वो लोग। तो बोले भैया मैं तो 5,000 में कुछ नहीं करने वाला, तू जा घर जा। बोले जैन साहब लॉन्ग क्यों करना चाहते हैं आप? मैंने बोला देख बेटा एक चीज बताऊं तुझे। मैंने पूछा तेरा रजिस्ट्रेशन कब का है? बोला सर 18 में लिया था, फरवरी 18 में, और 23 में नोटिस आता है मैंने रजिस्ट्रेशन बाय मींस ऑफ फ्रॉड लिया है, रिटर्न जा रहा है उसका सब कुछ। मतलब आप ये क्या करेंगे मालूम है? तू रिप्लाई भी करेगा तो तेरा रजिस्ट्रेशन विद रिट्रोस्पेक्टिव डेट के साथ कैंसिल करेंगे। कैंसिल करके तुझे तो कुछ नहीं होने वाला, फिर तेरे सारे बायर्स के पास जाएंगे और इनसे बोलेंगे क्यों ना तेरी क्रेडिट को रिवर्स कर दिया जाए, क्योंकि सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन बाय मींस ऑफ। यही हो रहा है पूरे पैन इंडिया में, राइट? यही हो रहा है। मैं अब तेरे बायर लोग सारे परेशान करके तेरे पास तेरे घर में आएंगे, बोलेंगे क्या कर दिया बिमल तूने, क्या कर दिया, तू तो चोर है, तूने तो पैसा रोक लिया है मेरा। और हमारे कलकत्ता में तो बड़ा बाजार में अकबर बंदा दिख जाए और फिर तो उसका जीना मुश्किल। और वो ऐसे प्रोग्राम में कहीं पे आ गया देखिए वही चोर है, देख वो बाहर बैठा है। सर ये आयरनी है। देन ही गॉट कन्विंस कि नहीं बिमल जी सही बोल रहे हैं। मैंने बोला मैं तेरा केस पूरा छुड़ा के लाऊंगा पर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ही वॉज अमेजिंग, हाई कोर्ट तक की बात कर रहा हूं जबकि सिर्फ सो कॉज नोटिस आया है, राइट? मैंने बोला बॉस लॉन्ग सर्विस। ही गॉट कन्विंस, बोला बिमल जी बहुत भरोसा करके आया हूं। मैं ठीक है। मैंने किसने भेजा है? शिवानी ने भेजा है। मैं चल ठीक है भाई, चेयरमैन से टाइम लेना है। तो शिवानी ने भेजा तो मान लिया मैंने। अब मैंने उसकी रिप्लाई की 1 पेज की, जस्ट 1 पेज रिप्लाई। आई डिड नॉट कोट एनी जजमेंट। I only said, sir, kindly let me know what is the basis and reason you are alleging that I have taken registration by means of fraud. Tell me the reason. And give me an opportunity of being heard so that I can explain my case. Nothing else I quoted. मैंने कोई judgment quote नहीं किया। 23rd May my reply gone. 29th May 23 को order आया, your registration cancelled with retrospective date. वो भागा भागा आया, बोले जैन साहब आपको कैसे मालूम? कहीं आपकी सेटिंग तो नहीं है पीछे? मतलब बॉस ये पूरे इंडिया में हो रहा है, मेरी कोई सेटिंग नहीं है, विश्वास मान। बोले आप क्या करेंगे? मैंने रिट डालूंगा हाई कोर्ट में। तो उसको लगा रिट और खर्चा। मैंने बोला बॉस यही तेरे लिए दवा है, इसको करने के लिए मैंने रिप्लाई किया था। रिप्लाई इसलिए नहीं किया था कि मुझे अब मैं रिट डालूंगा। आई फाइल रिट पिटीशन इन दिल्ली हाई कोर्ट। When it came up before Honorable Delhi High Court, I pleaded before the Lordship. Lordship, they have issued a so-called notice and alleging I have taken registration by means of fraud. I'm doing my business from 2018 and filing my all return. Until then, they are having no objection. All of a sudden, they are waking up and saying I have taken registration by means of. And Lordship, nothing they are saying in their so-called notice. What is the fraud they are referring to? Lordship, I've written a reply to them. Let me know my reason. कि यार तुम मुझे चोर बोले बता तो दो मैंने चोरी क्या की है? Am I right? Still, they are not giving PH also, Lordship. They are not giving PH. Lordship asked department guy, what you people are doing? What you people are doing? Are you not supposed to write region basis? Otherwise, this so-called notice is big with no basis, and he's asking for PH. Is it not violation of principle of natural justice? Lordship is pleading me on my side, right?
Then he is standing up. He's saying, Lordship, there's something wrong looks like to me. Let me check with the department. Give me time to file counter. अगर आप प्रैक्टिस हाई कोर्ट की देखेंगे ना, दे आर वेरी ड्रामेटिक. काउंटर का मतलब आपका केस गया लंबा. तो मैंने इमीडिएटली रोका, लॉर्डशिप नो काउंटर. What he will check? When that guy to whom I written that give me a PH, he is not giving me PS, Lordship, he is going to decide. And Lordship, they are invoking section 29, subsection 2, clause E. Just below that it is written, if you are cancelling my registration, you will give me PH. They are not reading this provision. 75 subsection 4 clearly saying, any adverse order passed. हमारे तो आज लर्नेड भी हमारे सर हैं. सर ये ना ईज ऑफ बिजनेस की तरफ जो चीजें हैं ना, जो हम मोदी जी चाहते हैं ना, वो नीचे तक नहीं जा पा रही. वहां पे उनको लगता है मैं ईज करूं, सबको शांति दूं, सब. लेकिन कभी कभार हमें भी लगता है कि एक बार आके ना हमसे ही बात करें. हाँ, अच्छा नहीं लगता? आप मौका दे दीजिए, ऐसा सुनाएंगे. सर नहीं, पर ये ना, ये जो बोल रहा है ना, दर्द बोल रहा है, दर्द. ये कोई मैं आर्टिफिशियल फ्लेवर थोड़ी डाल रहा हूं. आर यू ऑल इकोइंग और नॉट? दिस इज हैपनिंग. 75 सबसेक्शन 4 में बोलता है आप कोई एडवर्स ऑर्डर पास करेंगे तो मुझे पीएस देंगे. ये पीएस तो दिया नहीं लॉर्डशिप ने. And now they are saying that they will file counter. Lordship, it is no way doable. Lordship was convinced that day. Lordship said, no, I go with him. He's right. You are not reading what he's writing to you. You are not giving PS to him. What the hell you want counter? Nothing. This so-called notice, order vacated, and 5,000 रुपए और दो बेमल को. हाँ, I got the order. It is on public domain. ऐसा नहीं है आपको हंसाने के लिए और ताली मारने के लिए बोल रहा हूं. I got the order, Rahul Jain and Company. You can check from Delhi High Court. I got the order. So I'm only saying ये स्कूटनी का नाटक सब कर लिया. अभी कैलकाटा हाई कोर्ट में कितने सारे जजमेंट है. LGW इंडस्ट्रीज, संचिता कुंडू, गर्गो ट्रेडर्स, सनक्राफ्ट एनर्जी, सुप्रीम कोर्ट में गया, डिसमिस, मेरिट पे डिस्कशन नहीं हुआ. लॉट मेनी जजमेंट दे आर ओनली एलिजिंग बट नॉट प्रूविंग एनी कनाइवेंस. Am I right? Scrutiny is over, otherwise बहुत टाइम ले लेगा. Section 62, best judgment. What is best judgment? जैसा नाम है. Best judgment to them. हाँ, not to you. हाँ, आपको लगा आपके फेवर में. हाँ. ना आपके फेवर में नहीं है, इनके फेवर में है. Section 62 start with first of all non-obstante clause. Notwithstanding anything contained in section 73, 74 और अब आप आगे क्या बोलेंगे? 400 पार. 74 ए. देखिए कैसे याद हो जाएगा ना आपको, पूरा याद. मैंने क्या 73 में लिखा है, 74 में लिखा है, 74 ए में लिखा है, कुछ मुझे देखने की जरूरत. मैं तो तेरे अगेंस्ट में बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास कर दूंगा. कब पास करूंगा? जब तुमने 39 में रिटर्न नहीं भरा 3B, या 45 में फाइनल रिटर्न नहीं भरा. इवन आपको नोटिस दी गई थी सेक्शन 46 में GSTR 3A और आपने रिटर्न नहीं भरा, तो आपके अगेंस्ट में बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास होगा विद इन 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न. एम आई क्लियर? उन्होंने कहा अगर ये ऑर्डर पास हो गया और आपने 30 दिन के अंदर, पहले प्रोविजन 30 दिन होता था, अब 60 डेज कर दिया, 60 को प्लस 60 कर दिया विद लेट फीस के साथ. अगर आपने भर दिया, टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस जमा कर दी, दैट ऑर्डर शैल बी डीम्ड एज विथड्रॉन. दिस इज व्हाट द प्रोविजन सेक्शन 62. अब मुझे इसमें लगने लगा कि भैया ये इमीडिएटली ऑर्डर पास कर, थोड़ा टाइम तो दे मुझे. 3B का नाटक एक नहीं है, कई नाटक है. 3B हम कब क्यों नहीं भर पाते? रीजन क्यों नहीं भर पाते? रीजन नंबर 1, फंड अवेलेबल नहीं है. रीजन नंबर 2, अब फंड अवेलेबल नहीं है, आप क्या चाहते हो? मैं बैंक से लोन लूं 12% पे और फिर तेरी मैं 3B को भरूं 18% से बचने के लिए? इट इज ईज ऑफ बिजनेस. इट इज sheer going against the concept
और तुम देते कितना हो 6%, वो भी तो मिलता नहीं है। एम आई राइट? और इसके बाद तीसरा रीजन 3B नहीं भर पाया और 30 नवंबर चली गई, क्रेडिट, और आपसे टैक्स इंटरेस्ट के साथ लेंगे। इधर 3B में जो क्रेडिट नहीं ले पाए वो भी खा जाएंगे। आप मेरा 3B ओपन कर दो ना विद पार्ट पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट। हु इज स्टॉपिंग यू? एज ए टैक्स पे आई शुड बी अलाउड कि मैं तो आपको इंटरेस्ट दूंगा ना, आई एम गोइंग टू पे यू इंटरेस्ट 18% पर एनम, लेट मी फाइल माई 3B। जस्ट वो नहीं भर पाया तो बेस्ट जजमेंट ऑर्डर। वन मैटर गॉन टू मद्रास हाई कोर्ट, component comfort shoes, this is the title. In that judgment what happened, petitioner argued before lordship there is a 5 years time period. उसने 22-23 का एग्जाम्पल उठाया था। 22-23 की एनुअल रिटर्न की डेट होती है 31 दिसंबर 23, ऑर्डर के लिए 5 साल 31 दिसंबर 29। उसने बोला लॉर्डशिप उसके बाद 30 दिन देखिए ना, क्योंकि इसके सारे पावर खत्म हो जाएंगे, इसलिए इसको 5 साल में इनको करना है। पर ये थोड़ी है आप मेरा सारा ऑर्डर पास करके बैठ जाइए, मेरा सारा काम बंद, मेरा कैंसिलेशन कर दीजिए, फिर मैं कोई रिटर्न नहीं भर सकता। एम आई राइट? एम आई राइट? सो दिस इज नॉट गुड, सेक्शन 62। पर एक चीज और करेक्ट कर दूं, कैंसिलेशन इज द इजीएस्ट ऑप्शन इन देयर हैंड। आप रिटर्न नहीं भर पा रहे, 6 महीने का कैंसिलेशन। अरे बेचारा भर क्यों नहीं पाया, पूछ तो ले। 6 महीने में बिजनेस चालू नहीं कर पाया, पूछ तो ले क्यों चालू नहीं। रजिस्ट्रेशन अगले ने लिया और बिजनेस चालू नहीं किया तो उससे जाके पूछो तो सही कि तुझे दर्द कहां हो रहा है। नथिंग सर, नथिंग, नथिंग, सीधे कैंसिल कर देंगे आपका रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद फिर आप रिटर्न नहीं भर सकते, और रिटर्न नहीं भर सकते तो कई बार ऐसा होगा कि आपकी 3B की डेट 16/4 में निकल गई, होता है ना, और फिर क्रेडिट। पर गनीमत है इस फाइनेंस बिल में कुछ दे दिया आपको। इस फाइनेंस बिल में सेक्शन 16 सब सेक्शन 6 दे हैव इंट्रोड्यूस। उन्होंने कहा बिमल अगर तू कैंसिल डीलर है और तू अपना तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो गया है तो तुझे एक इजाजत दे देगी, तेरा रिवोकेशन होगा, और रिवोकेशन अगर सेम टाइम पीरियड में है 30 नवंबर अवेलेबल है तो 30 नवंबर तक भर दे। अगर वो क्रॉस कर गया तो एक कंडीशन दे दी, विद इन 30 days फ्रॉम द रिवोकेशन ऑर्डर। अगर आपने सारे रिटर्न फ्रॉम कैंसिलेशन टिल रिवोकेशन भर दिए तो आपकी क्रेडिट बार्ड नहीं होगी। बजट फाइनेंस बिल 2024, सो दिस इज गुड वन। कमिंग बैक टू सेक्शन 63, अब मैं थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आपको सारे सेक्शन का दे रहा हूं जिससे ये लगे कि हाँ बाकी हमने असेसमेंट पूरा सुना, ऑडिट पूरा सुना। 63 बोलता है अनरजिस्टर्ड पर्सन का असेसमेंट कैसे किया जाएगा। आप लायबल थे, आपको रजिस्ट्रेशन लेना था, पर आपने रजिस्ट्रेशन, तो ऐसा मत सोचिए आप बच गए, ऊपर वाला सब देख रहा है। अब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो गया लेकिन लायबिलिटी है आपके अगेंस्ट में, तो आप बच नहीं सकते। And this section also starts with the tagline non-obstante, notwithstanding anything contained in 73, 74 और 74A। यानी क्या लिखा है, कुछ नहीं। They will pass the order within 5 years from the due date of furnishing annual return। तो यानी आपके लिए ये असेसमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन का हुआ। And last section, section 64, and 64 talks about summary assessment. Summary assessment is what? जो वैट में अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो आपको मालूम होगा, कई बार लगता है कि ये बंदा भाग जाएगा, पकड़ इसका असेसमेंट कर, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। सो ये छोटा मोटा सेक्शन यहां तक खत्म। ऑडिट पे 10 मिनट देते हैं, तरुण भाई की भी बात रखनी है, आगे भी स्पीकर हैं, तो बैक टू बैक प्रोग्राम इनका पूरा डिसाइडेड है। आई डू नॉट वांट टू इंक्रोच, कम से कम ये नहीं होना चाहिए शिवानी बोले कि नहीं सर आपने टाइम ज्यादा ले लिया, तो मुझे नहीं, मुझे तो आपके साथ अच्छा वाला करना है, जैसे आप बोले कि हाँ पहला सेशन था और बेस्ट सेशन था, मुझे तो ये चाहिए और कुछ नहीं मांगता मैं।
मेरे को कुछ नहीं चाहिए। देखिए कई बार मैं इधर आता हूं, कई बार कई लोग होते हैं उनका ये रहता है कि यार बिमल जी को ही सुनना है, तो मुझे उनके प्रति बड़ा अफेक्शन है, यार बिमल जी को ही सुनना है। इतना प्यार कौन देता है, और वो भी 31 जुलाई से पहले। राइट। ऑडिट सेक्शन 65 रेड विथ रूल 101। ऑडिट can be done on 5 count. Audit is defined under section 2 subsection 13 of CGST Act. There are so many youngsters sitting in front of me. They must be thinking कि बिमल जी section subsection सारा बोल रहे हैं यार। Sir, I'm telling you that is what the beauty of subject matter, passion and love for something. आप किसी को प्यार करें तो ऐसा प्यार करें पूरा दिल से, भीतर से बोलना चाहिए। एंड नो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, राइट। और आपको मैं कहीं ये फील भी नहीं करा रहा कि हम कोई जीएसटी की क्लास ले रहे हैं, हमको तो लग रहा है हम कोई पिक्चर देख रहे हैं। मुझे तो अब ये लग रहा है, अब तो मुझे लग रहा है कि ये ऑडियंस मेरे साथ है। अब ऑडिट सुन लिए 5 काउंट पे आपने अपनी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई प्रॉपरली दिखाई है या नहीं दिखाई है, टैक्स पे किया है या नहीं किया है पेड, रिफंड कहीं एक्सेस तो नहीं ले लिया, आईटीसी कहीं एक्सेस तो नहीं ले ली, और आप कॉम्प्लायंसेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये 5 काउंट पे आपकी ऑडिट हो सकती है। कौन करेगा? कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, वो आपकी ऑडिट करेगा। कहां करेगा? या आपकी ऑफिस में या खुद की ऑफिस में। नोटिस देगा आपको मिनिमम 15 डेज की। ध्यान रखिएगा, कभी 3 दिन की नोटिस आए, 7 दिन की नोटिस आए, राइट बैक। सर 65 बोलता है 15 दिन की मिनिमम नोटिस। ऑडिट कंप्लीट करनी है विद इन 3 months, which can further be extended by 6 months by commissioner on region to be recorded in writing. So 3 + 6 months कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद विद इन 30 डेज वो आपको मेमो भेजेगा कि बिमल तेरे अगेंस्ट में ये निकला है, या तो पे कर दे। अगर पे नहीं किया तो तेरे अगेंस्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी अंडर सेक्शन 73, 74 और आगे क्या बोलेंगे? देखिए कैसे याद हो गया ना याद, क्योंकि 73 and 74 only up to 23, 24. So 74A, that is what it is talking about. अब इसमें 2-3 पॉइंट है ऑडिट के अंदर। What is the commencement of audit? क्योंकि 3 + 6 मंथ तो वहीं से होगा ना। मान लीजिए उसने आपको ऑडिट का नोटिस दिया, आपने सारे बुक्स दे दिए इसको, इज इट कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट? हाँ या ना? अच्छा, हाँ वाले कितने हैं और ना वाले? अच्छा, जो कुछ नहीं बोलना चाहते वो, हाँ ऐसे वाले। ममता दीदी तो दिल्ली गई, इनको छोड़ गई यहां पे, बोले तू जा, ये बीजेपी का ही है, इसको जाके कुछ एजिटेट करना। दादा एक चीज बताऊं मैं आपको, जब भी पढ़ाई लिखाई की क्लास में आए ना, बच्चे बन के आइए। यू शुड नॉट बी लर्नेड। अगर आप लर्नेड हो गए तो पढ़ नहीं पाएंगे, फिर आपके माइंड में बार बार हिट करेगा कि हाँ मैं ये नहीं सर। जब मुझे वहां बैठ के सुनना है तो मुझे बस सुनना है आपको। हाँ, आप कुछ पूछेंगे, जो आंसर मुझे आता है मैं दूंगा आपको। वो छोटी सी 1 मिनट की कहानी सुना देता हूं, ज्यादा मुझे टाइम भी नहीं है तो सुना देता हूं। वो लक्ष्मण वाली, राम वाली कहानी सुनी है आप लोगों ने? नहीं सुनी? शिबानी सुनी नहीं? अच्छा, मेरे से ही सुनी है। फिर सुन लीजिए एक बार। जब रावण मर रहा था, महाज्ञानी था वो, महाज्ञानी। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि जा रावण के पास जाके शिक्षा लेके आ, वो जो शिक्षा देगा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और लक्ष्मण को तो आपको मालूम है, आप बैठे ही हैं लक्ष्मण, पूरा ईगो यहां पे रख के, मैं छोटा कैसे हो जाऊं। लक्ष्मण गया, रावण ने कुछ नहीं कहा, वापस आ गया, राम जी से बोलने लगा, भैया मैंने कहा था ना वो एड़ू है, वो कुछ नहीं सिखाएगा। कुछ नहीं सिखाया। पर भगवान राम को मालूम था कि लक्ष्मण में क्या गुण है। मुझे भी आपके कई बार मालूम होते हैं।
कि आप हाथ बार बार बोलने पे भी ऐसे चलेगा। तो भगवान राम ने पूछा, तू जब गया तो रावण की तरफ कहां खड़ा था जहां पे शिक्षा चाहिए थी? बोले सर पे खड़ा था, जिससे तू सुन लूंगा। बोले जिसके पास जब शिक्षा लेने जाओ ना, उसके चरणों में बैठना चाहिए, सर पे नहीं बैठना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कई बार बोलता हूं हाथ उठा दीजिए, तो ये मान के उठा दिया कीजिए कि चलिए बिमल जी ने कहा उठा देता हूं। क्या मालूम उसी भगवान की आपकी एंटीना मैच कर जाए। हाँ, और वो सारे सेक्शन सब सेक्शन आपकी सीपीयू में आ जाएं। हाँ, कई बार ऐसे ही होता है। हाँ, आप प्रेम करके तो देखिए। वरना श्री कृष्ण और सुदामा में दोस्ती नहीं। श्री कृष्ण सुदामा को जितना विश्वास श्री कृष्ण में था, उतना ही विश्वास श्री कृष्ण को सुदामा में था। इट्स नॉट द मैटर हम कहां पे हैं, इट्स द मैटर ऑफ कीपिंग फेथ। सो लेट्स पुट लाइक दैट। ठीक है, 100-150 लोग बैठे हुए हैं। माई ओनली हम्बल सबमिशन, व्हेन यू आर हियर, आई एम एंजॉयिंग माई सेशन, यू टू एंजॉय द सेशन। और मेरे जाने के बाद ये लगना चाहिए कि हमने एंजॉय किया, राइट? ये फील नहीं होना चाहिए कि 1500 रुपए की फीस ले ली, मजा नहीं आएगा तो पैसे वापस, ये देंगे मैं नहीं। लास्ट 1000 रुपया। अच्छा सॉरी, 1000। अच्छा, लास्ट टाइम डिस्काउंट हो गया होगा। पहले से था। ओके। Commencement of audit as the way they have defined, delivery of books of accounts or institution of audit by the department whichever is later. जब तक ये नहीं जागेंगे ना, तब तक कमेंसमेंट। तो आपको जस्टिफाई लगा? हमने दे के बैठे हुए हैं, 3 महीने तक बैठे ही हुए हैं उस पे। अरे क्लैरिफाई कर दो, मैंने तो बुक्स का अकाउंट दे दिया है आपको, आप क्लैरिफाई कर दो ना। अब एक सुप्रीम कोर्ट में एक रीसेंट केस गया है, फॉर्मेंटो होटल एंड रिसोर्ट्स लिमिटेड। ऑडिट वाले को मालूम पड़ा, क्या ऑडिट वाला सो कॉज नोटिस दे सकता है आपको? And that is under now sub judice, and that is being admitted by Honorable Supreme Court, because that section 65 refer to, अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो सो कॉज नोटिस इशू होगा 73, 74, 74 में ए में, जो आपका जुरिडिक्शनल ऑफिसर करेगा। वहां ऑडिट वाले ने सो कॉज नोटिस दे दिया। क्लैरिटी कमिंग टू द सेक्शन 66। यहां से कोई भी बंदा सीए और सीए में डिपार्टमेंट ने नॉमिनेट किया हो ऑडिट के लिए, जाइए डिपार्टमेंट अपना एनरोलमेंट कराइए आप। एंड हियर इट इज बीइंग सेड, a proper officer not below the rank of assistant commissioner, if he thinks that you may have taken excessive credit, or there's the case of valuation, undervaluation, then during audit इंक्वायरी चल रही है, उस दौरान वो सीए या सीएमए को नॉमिनेट कर सकता है, और उसको वो ऑडिट करनी है ऑन 2 काउंट, वैल्यू एंड क्रेडिट, एंड ही विल सबमिट द रिपोर्ट विद इन 90 days, and then they will take action accordingly for issuance of so called notice. So as I said, मुझे टाइम के साथ क्लोज भी करना था, और मेरे लर्नेड अदर स्पीकर भी अब दिख रहे हैं मुझे, तो मैं इंक्रोच नहीं करूंगा, 2 मिनट और लूंगा, क्लोज करूंगा। There are 4 A's being considered today: assessment, audit, adjudication, appeal. अब 5वां आप जरूर ऐड कीजिए AI. Manual days are gone. Return filing manually gone. Automation is the need of the hour, but with subject to correction. वो automation मत कर दीजिएगा, 1 रुपए की deficiency है, discrepancy notice. Now AI with proper evaluation, proper cross-checking and verification, and that is how we have to move further. So my only submission to each one of you would be, these topics are very very interesting and important. कई बार थ्योरी लगती है, पर इसमें बहुत कुछ है। एक लास्ट केस आपके साथ करूंगा, खत्म करूंगा मैं। अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हमने एक रिट पिटीशन डाली,
एंड टॉपिक वाज ASMT 10 इसको दिया गया ऑन 21 नवंबर 23 को फॉर 18-19 टाइम पीरियड, फाइनेंशियल ईयर 18-19. लास्ट टॉपिक 2 मिनट 3 मिनट में खत्म करूंगा. And just to tell you that how we look at litigation and how litigation can give you the resultant outcome. उसको ASMT 10 दिया गया, 14 डिस्क्रिपेंसी दे दी गई उसको कि तेरा ये मैच नहीं करता, तेरा वो मैच नहीं करता, तेरा ये नहीं है, तेरा वो नहीं है. 18-19 का पीरियड था. 26 दिसंबर 23 को सो कॉज नोटिस दे दिया. इसने रिप्लाई भी नहीं किया था ASMT 10 का. सो कॉज नोटिस आ गया 26 दिसंबर 2023 को 18-19 के लिए. इसने रिप्लाई सबमिट की 23 फरवरी 24 को. एक एक पॉइंट का इसने रिप्लाई किया सो कॉज नोटिस का. फिर एक और सो कॉज नोटिस ऑन 19 मार्च 24 को एक और सो कॉज नोटिस विथ रेफरेंस टू माय फर्स्ट सो कॉज नोटिस जो 26 दिसंबर 2023 की थी. और उसमें मुझसे कहते हैं 8 दिन के अंदर आंसर कर. भाई 28 मई 24 इसने 8 अप्रैल को रिप्लाई सबमिट किया. 8 अप्रैल को इसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर दिया गया. बोला भैया 97 करोड़ रुपीज का आप टैक्स जमा करो. क्लाइंट केम टू मी. उसने कहा जैन साहब क्या करना है इसका. आई लुक एट फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव. पहले लीगलिटी कि सो कॉज नोटिस जो इशू किया गया है उसमें लीगलिटी कितनी है, टाइम के अंदर है या नहीं है, जो मेरा टॉपिक नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ASMT 10, राइट. एंड 168 कैपिटल ए की बात मैंने कर ली है आपसे. भूल जाइए ASMT 10, भूल जाइए 168 कैपिटल ए. अगर 18-19 का नॉर्मल टाइम पीरियड भी होता तो 31 दिसंबर 23 को ऑर्डर पास हो जाना था नॉर्मल टाइम पीरियड में 23 में, और सो कॉज नोटिस सितंबर 23 में आनी थी. अगर मैं 168 कैपिटल ए का टाइम पीरियड 56/2023 से बढ़ा भी दूं तो 30 अप्रैल 24 की लास्ट डेट थी ऑर्डर पास करने की, तो सो कॉज नोटिस आना चाहिए जनवरी 24 तक. सेकेंड सो कॉज नोटिस वो मुझे देता है 19 मार्च को, रेफरेंस ऑफ फर्स्ट सो कॉज नोटिस 26 दिसंबर 23 का. मैंने पहले यही ग्राउंड लिया लॉर्डशिप, ये सो कॉज नोटिस सेकंड जो दिया गया जिसमें 97 करोड़ रुपीज का नया एलिगेशन लगाया गया है, ये बार्ड बाय लिमिटेशन है. मेरिट पे तो बाद में सुनिएगा, पहले बार्ड बाय लिमिटेशन. और हम जो लिटिगेशन करते हैं उनके लिए कई बार चैलेंज होता है टैक्स बेंच वर्सेस नॉन टैक्स बेंच. अगर टैक्स की बेंच है तो वो थोड़ा प्रोविजन समझेगी, नॉन टैक्स बेंच है तो नहीं समझेगी. और बत्रा साहब हमारे सामने बहुत लर्नेड लिटिगेशन करते, कई बार हमने इनसे ही सीखा है कोर्ट में बैठे हुए कि बेंच को कैसे समझाना है. बाकी इट्स एन आर्ट, इट इज नॉट बुक. आप बुक से नहीं समझ सकते, आपको बहुत सारा नॉलेज है लेकिन कितना बताना है बेंच को इट्स एन आर्ट. तो मैंने पहले लिमिटेशन पे आर्ग्यू किया. लॉर्डशिप को मेरी बात समझ में नहीं आई. लॉर्डशिप ने कहा ठीक है तुम जाके अपील कर लो 107 में, अपील कर लो. मैंने कहा लॉर्डशिप इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, सो व्हाट, सो व्हाट. अब मुझे दूसरा ग्राउंड लेना पड़ा. लॉर्डशिप दे द वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. अब बोले इसमें कौन सा वायोलेशन हो गया. मैंने कहा लॉर्डशिप इसने मुझे PH नहीं दिया. 8 अप्रैल 24 को मैंने रिप्लाई सबमिट किया और 8 अप्रैल को ये ऑर्डर पास करता है, PH नहीं देता. लॉर्डशिप पर्सनल हियरिंग तो देगा, एडवर्स ऑर्डर पास कर रहा है मेरे अगेंस्ट में. लॉर्डशिप 30 दिन का टाइम पीरियड है मिनिमम. 73 के अंदर अगर आप जाके देखेंगे जहां पे बोलते हैं ना कि इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस से पहले अगर कोई रिप्लाई आप टैक्स इंटरेस्ट जमा कर दे 30 दिन. MP हाई कोर्ट रेमंड्स लिमिटेड उसमें ये कंसीडर किया गया 30 डेज. कम से कम टाइम तो दो. तीसरा आर्गुमेंट लिया लॉर्डशिप कुछ चीज अगर इनको चाहिए थी जो काउंटर कर रहा था मेरा DR, ये बोलते हैं सर इसने आंसर नहीं दिया तभी तो हमने कंफर्म किया. मैंने कहा तुझे रोका किसने था, तू मांग लेता मेरे से. 30 अप्रैल की डेट थी. चौथा मैंने आर्गुमेंट लिया लॉर्डशिप अगर ये बार्ड बाय लिमिटेशन है जनवरी से पहले कितने भी सो कॉज नोटिस मुझे दे देता, जनवरी 24 से पहले. 19 मार्च को एक नया इशू जो ASMT 10 में था ही नहीं, जो सो कॉज नोटिस 1 में था ही नहीं, लॉर्डशिप उस पर कैसे हो सकता है. देन ही गॉट कन्विंस कि इसमें कुछ दम है. नॉन टैक्स बेंच. देन ही आस्क्ड
आपने पीएच क्यों नहीं दिया इनको? अनफॉर्चुनेट पार्ट, वो सिंगल मेंबर बेंच थी, मेरे पास डिवीजन बेंच का जजमेंट था उसी हाई कोर्ट का। अब वो डिवीजन बेंच को काउंटर तो कर नहीं सकते। तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, पीएच क्यों नहीं दिया आप? बोले नहीं लॉर्डशिप दिया होगा, ये ऑर्डर से निकल के नहीं आ रहा। हाँ आप सच में से, जतिन भाई भी हैं, बत्रा साहब भी हैं, हम अरूप दादा भी है, तरुण भी है, अरुण जी भी हैं। अरुण जी कहाँ है? अरुण जी नहीं है, अच्छा ठीक है। हम लोग कई बार जब आप डिपार्टमेंट के साथ आर्ग्यू करेंगे ना, तो कई बार ऐसा लगेगा वो अपनी तरफ से ऐसे ऐसे केस बनाएगा कि बस आपके अगेंस्ट में कंफर्म है, आपने कुछ नहीं किया। मैंने कहा सर लॉर्डशिप लिखेंगे ना ये किसने मुझे पीएच दिया इस डेट को? कुछ नहीं है। सो आई एम ओनली गिविंग लास्ट फ्लेवर टू यू। आज के 4A में ये फ्लेवर बहुत इंटरेस्टिंग है कि लिटिगेशन इज रियली ब्यूटी। जब आप इसको बाकी करना स्टार्ट करेंगे ना, देन यू विल गेट मेनी एंगल टू डू दैट। सो विदाउट गोइंग फर्दर, आई एम थैंकिंग ईच वन ऑफ यू till back. Thank you very much. Thank you. May I now please invite Siddhant Jajodia to propose a formal vote of thanks. GST, which was supposed to be a good and simple tax, is now filled with audits and assessments by the department. I would like to thank Bimal Jain sir for helping us understand these 2 A's in black and white. It has always been a great pleasure listening to you, sir, filled with knowledge, insights and fun. And I know, sir, it's really early to say, but I can say with confidence, sir, ये first session था और best session था. Thank you so much, sir, for your time. It was really amazing. Without any taking more time, I would like to ask Neeraj Bhaiya, please come and please initiate the technical session 2. Thank you.